ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰਕੀਟੈਕਨੀਕਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਟਸ ਲੈਸਨ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਫ ਕਲਾਸ +1। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ MCQs ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ MCQs ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ MCQ ਹੋਵੇ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ MCQs ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MCQs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MCQs ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ MCQs ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ well defined objects। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਟਸ ਦੀ। ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ 1 2 3 4 5 दिस इज़ अ सेट। एक सैट है वैल डिफाइंड डाटा आ। ठीक है, और एक भी गल तुहानू पता होनी है कि जो सैट है उन्होंने असी करली ब्रैकेट्स दे विच लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नैक्सट है कि इनू रिप्रजेंट करने के लिए सैट नू साडे कोल 2 मैथड्स ने। सैट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स असीं समझनियां ने की हुंदियां ने। फस्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म किहड़ी हुंदी है? लाइक तुहानूं एग्जाम्पल ना ही समझ आ जाएगा। फस्ट की जे असीं एग्जाम्पल देखिए तो जिवें मैं पहले उपर एग्जाम्पल दी सीगी 1 2 3 4 5 दिस इज़ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब कि असी ये सिर्फ जो साडा मेन डाटा है उन्होंने चक के असी ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स के लिख देना होंदा है रोस्टर फॉर्म दे विच। और सैट बिल्डर फॉर्म दे विच की करना होंदा असी कॉन्स्टेंट्स टर्म जिवें XYZ वेरीएबल्स का यूज़ करना होंदा है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लैके तुहानूं दसदा मैं। सैकेंड दी एग्जाम्पल हो सकती है, ये असी एक वेरीएबल लैना होंदा है। सपोज करो इनू असी सैट बिल्डर फॉर्म च लिखना, आ रोस्टर फॉर्म च लिखा होया है। ठीक है, सो दिस इज़ रोस्टर फॉर्म। सो असी इनू कन्वर्ट करना है सैट बिल्डर फॉर्म दे विच। तो असी किवें लिखांगे? X सच दैट X इज़ अ नैचुरल नंबर। ठीक है, नैचुरल नंबर किहड़े हुंदे ने? जिहड़े 1 तो स्टार्ट होंदे ने। 1 तो स्टार्ट हो रहा है, इस करके X की है नैचुरल नंबर है जो कि लेस वेयर X इज़ लेस दैन 5। ठीक है, जो इक्वल टू 5 दे इक्वल है, 5 तक है, मतलब 5 तो छोटे जोड़े नैचुरल नंबर ने उस उन्हों का ये सैट है। सो ये जी फॉर्म तुसी देखी है दिस इज़ सैट बिल्डर फॉर्म। सो आई होप कि तुहानू क्लीयर हो गया होएगा रोस्टर फॉर्म और सैट बिल्डर फॉर्म। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देवां कि सैट्स नू रिप्रजेंट करन दे साडे कोल 2 मैथड्स ने।
ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, MCQs ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ A, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ 1 2 3 ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2 ਡੈਸ਼ ਸੈੱਟ A, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈੱਟ A ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈੱਟ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ 4 ਡੈਸ਼ ਸੈੱਟ A, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ 4 ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। मैथमेटिक्स, सॉरी मैं कुछ भी लिख दिता है मैथमेटिक्स। तो ये तुसी देखो कि जी टर्म रिपीट हो रही है, जिमें ए इत्थे भी आया, इत्थे भी आया, इत्थे भी आया। सो असी इनू रिपीट नहीं करना, सिर्फ असी एक बारी लिखांगे। सैट ए सैट दे विच लिखना होवे एम, दूसरी बारी ए, सिर्फ एक बारी, बार बार रिपीट नहीं करांगे, ठीक है। नैक्सट टी एच लाइक दिस, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि रिपीट जड़ा है वो नहीं करना, ठीक है। सैट्स दे विच जो एक बारी अखर आ गया उन्होंने रिपीट नहीं करना। नैक्सट सारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैट्स। सो ऊपर तुसी डेफिनेशन देख सकते हो, अ सैट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज दी सैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। कहते कि जेड़ा सैट एम्प्टी है जां उहदे विच एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने, एलीमेंट नंबर जिहड़े ने डेफिनेट ने, दैन वो सैट जिहड़ा है डेफिनेट सैट होएगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सैट होएगा। सो लाइक एग्जाम्पल्स देखते हैं। नैक्सट असीं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जिवें फस्ट एग्जाम्पल है, असीं दसना है कि सैट जिहड़ा फाइनाइट है जां इनफाइनाइट है। ये तुहानूं कंसैप्ट की क्लैरिटी होएगी एग्जाम्पल्स नूं सोल्व करके। सो फर्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नैचुरल नंबर, एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो रूट्स दिते हुए हैं, जे इन्हां दे असीं वैल्यूज़ निकालीए तो की आएगा, एक्स माइनस 1 नूं 0 दे इक्वल कर लो, एक्स माइनस 2 नूं 0 दे इक्वल कर लो, की आएगा, एक एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो साडे कोल सैट की बन जाएगा फर्स्ट दा 1 और 2। आ केड़ा सैट है, इहदे विच की है, लिमिट है, ठीक है। एक इनफाइनाइट है, ठीक, सॉरी फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, मतलब लिमिट है नंबर्स दी। सो एक केड़ा सैट होया, सॉरी फाइनाइट सैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब 2 दा स्क्वायर, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कि 2 तक जाएगी। सो ये आ सकता है
2 आ सकता है बेसिकली, ठीक है। 2 ही ਦਾ ठीक है आंसर आ सकता है क्योंकि 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ 4 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ठीक है। सो ये फाइनाइट नंबर है, इस करके फाइनाइट सेट हो गया, मतलब कि लिमिट है एक जिस चीज़ की, ठीक है। नैक्सट इज़ नैक्सट असी कुछ वो देखते हैं इनफाइनाइट से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिमें लास्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ऑड। नैचुरल नंबर है एक्स जड़ा आ और एक्स ऑड है, ठीक है। सो फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਔਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਵ ਔਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ठीक है स्टूडेंट्स, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ। ਵਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਰਾਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ B, ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 2 1 ਐਂਡ 4। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੈਟ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਬਸੈਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ MCQs ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਬਸੈਟ। ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈੱਟ A ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ B ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 2, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ A ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਜੋ B ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ 1 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, C ਲਾਈਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, B ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ, B ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਫ ਸਬਸੈਟ, ਇੰਟਰਵਲਸ ਐਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ this and fourth one is this। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि तुहानू समझ लग गया होएगा। और इन्हां क्लोज इंटरवल्स का की मतलब हुंदा आ, ठीक है। क्लोज इंटरवल्स का मतलब तुहानू मैं दसदा लाइक देखो कि मैं ये दो लैटर्स ये असीं लिखे हुए ने, ठीक है, ए और बी, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब की होएगा कि जिहड़ा साडा ए है, ठीक है, जिवें हुण इत्थे असीं एक्स नाल डिनोट जे असीं करना होवे सैट दी फॉर्म दे विच, तां किद्दां आएगा कि ए जिहड़ा है वो एक्स तो छोटा वड्डा, ए जिहड़ा एक्स तो छोटा है और एक्स दे इक्वल है, मतलब कि एक्स की जिहड़ी वैल्यू है ए भी हो सकती है, ठीक है। ए सच होएगी इहदे विच क्लोज इंटरवल्स दे विच, ठीक है, मतलब ए उहदे विच इनकलूड होएगा। बट ओपन इंटरवल दे विच दा मतलब हुंदा है कि ये इनकलूड नहीं होएगा, ठीक है। सो इन्हां दे अकॉर्डिंग ही इन्हां दा मतलब है क्लोज इंटरवल्स जे अगे लग्या होया लाइक दिस, देखो सपोज करो इत्थे लगा होया आ 2 ये चीज़ लगी हुई है, तो हम असी एक्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखो कह रहे कि एक्स जड़ा आ वो 2 तो वड्डा आ, 2 तो वड्डा की हो सकता 3 4 5 और 6, 7 तो छोटा है, तो 6 तक असी गिनती लिखांगे, ठीक है। हुण इत्थे उन्होंने इक्वल नहीं पाया, ये की है ओपन इंटरवल है, इसका मतलब कि 7 विच इनकलूड नहीं होएगा, ठीक है, तो असी 6 तक ही लिखांगे। बट इत्थे इन्होंने साडे कोल क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब कि 2 जड़ा है साडा वो इहदे विच मौजूद होएगा, ठीक है, ये प्रेजेंट होएगा क्योंकि इत्थे की लगा होया साडे कोल क्लोज इंटरवल। सो 2 इहदे विच ऐड होएगा। सो स्टूडेंट इत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इहदा जे तां इक्वल टू नाल दिता होया नीचे, तो वो जिहड़ा लैटर है वो साडे सैट दे विच मौजूद होएगा। आई होप कि तुहानू कंसैप्ट समझ आ गया होएगा इंटरवल्स वाला। हुण मैं बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुका हाँ, और नाउ इट्स टाइम टू टेक ओवरव्यू दिस, ठीक है। हुण मैं तुहानू इस ना टॉपिक्स तो इलावा जिहड़ियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ने, ठीक है, जिवें हुण यूनीयन टॉपिक जिहड़ा साडा रह गया, यूनीयनस की हुंदे ने वो भी एक बारी डिस्कस कर लैंदे आ। मोस्टली मैं सारे ही टॉपिक जिहड़े ने वो तुहानू समझा दित्ते ने, जिन्हां तो MCQs जिहड़े ने वो ईजीली बन सकते हैं, ठीक है। असीं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ही कर चुके हैं। नैक्सट इज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साडा रह गए ने 2, यूनीयन एंड इंटरसैक्शन। मैं दोनों ही टॉपिक इकट्ठे तुहानू एक्सप्लेन कर देवांगा। सब तो पहलां गल करते इन्हां दे सिंबल्स की। सो ठीक है, इन्हों किवें किस दी मदद नाल इन्हां नूं रिप्रजेंट किया जाता है। यू दे लई असीं यूज़ करते हैं दिस वन, यूनीयन दे लई आ सिंबल जिहड़ा असीं यूज़ करते हैं, और इंटरसैक्शन दे लई इहदा ऑपोजिट साइन दिस वन, ये साइन असीं इंटरसैक्शन दे लई यूज़ करते हैं। सो यू का मतलब तुसीं कॉमनली जे याद रखना चाहो तो ईजीली ट्रिक दे नाल इहदा मतलब तुसीं याद रखो ऑल एलीमेंट्स, ठीक है। तुहानूं दसदा किवें तुसीं इहनूं यूज़ करके ईजीली आंसर लिख पाओगे। इहदा मतलब तुसीं याद रखो कॉमन एलीमेंट्स ओनली, ठीक है। हुण मैं तुहानूं इन्हां दे उपयोग दसदा कि किवें तुसीं इन्हां दे उपयोग लिख सकते हो। सपोज करो सैट ए तुहानूं दिता होया आ 1 और 2, सैट बी दिता होया आ तुहानूं 2 3 एंड 4। हुण जे तुहानूं कहण कि ए यूनीयन बी लिखो, आ चीज़ दिती होवे कि असीं ए यूनीयन बी फाइंड आउट करना है, तो तुसीं की करोगे, यू का मतलब असीं कर याद किया कि ऑल एलीमेंट, मतलब कि दोनों सैटां दे जिन्ने एलीमेंट्स ने उन्होंने सब नूं असीं लिख देवांगे। सो इहदा आंसर की होएगा, सारे एलीमेंट लिखो 1 2 3 एंड 4। मतलब तुसीं हुण देखोगे कि 2 मैं रिपीट नहीं किया, दोनों पासे 2 बट मैं एक जगह ही 2 लिखिया, रिपीट नहीं करना, असीं पहले ही पढ़ चुके हैं। सो तुसीं देखिया कि इहदा आंसर साडे कोल आ सैट आ गया, ठीक है। यू दा यूनीयन का मतलब ऑल एलीमेंट्स, ठीक है। और जे ते इंटरसैक्शन हुंदा, आ वाला साइन हुंदा दिस वन लाइक दिस, तो आंसर की आना सी साडा, इहदा मतलब की हुंदा है कॉमन, दोनों च की चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। सो इहदा आंसर कल्ला की आ जाना सीगा साडा 2 सैट,
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि तुहानू क्लैरिटी होएगी। मैं दोनों ही इकट्ठे समझा दिते ने तां जो तुहानू कन्फ्यूजन ना होवे किसी भी तरीके की। सो इदां दे क्वेश्चनस आउणगे, आई होप कि तुसीं सॉल्व कर पाओ। हुण असीं इन्हां दे कुछ लॉज देख लैने, यूनियन दे नाल रिलेटेड कुछ लॉज ने जिन्हां तो पिछली बार MCQs आए भी सी। ठीक है, एक बारी उन्होंने समझ लैने असीं। ये चीज़ां वैसे याद करने वालियां ने, तुसीं ईजीली तो याद कर सकते हो। फर्स्ट है सम प्रॉपर्टीज़ ने यूनियंस दे ऑपरेशनस दियां। ठीक है, A यूनियन B हमेशा इक्वल होएगा B यूनियन A दी। मतलब कि जो तुसीं A यूनियन B लिखोगे तो B यूनियन A दोनों ही इक्वल होणगे। नैक्सट है इनू असीं कॉम्यूटेटिव लॉ कहने ने। ठीक है, वैसे आह वाली चीज़ जिहड़ी आउंदी हुंदी है कि A यूनियन B किहदे इक्वल होएगा, चार ऑप्शन दित्तियां होणगियां लाइक दिस वन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ भी इंपॉर्टेंट है कि A यूनियन A किहदे इक्वल होएगा A दी। ठीक है, A यूनियन, ठीक है, इहदा मतलब की हुंदा है एम्पटी, मतलब कि सैट एम्पटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए दे इक्वल हुंदा है। U यूनियन A इज़ इक्वल टू U हुंदा है, इनू लॉ ऑफ U भी कहंदे ने। ठीक है, सो ये चीज़ां तुसीं याद जरूर करनियां ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸੈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ एग्जाम्पल ना समझते हैं असीं, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी एग्जाम्पल के नाल और जल्दी समझ आ जाएगा। डेफिनेशन दे विच तुहानूं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो सपोज करो एक साडे कोल यूनीवर्सल सैट है साडा 1 2 3 4 5 6 7 और एक साडा सैट हैगा A सैट है लाइक 1 2 एंड 3। ठीक है, हुण जिवें तुहानूं कहां कि A दा कॉम्पलीमेंट फाइंड करो, कॉम्पलीमेंट नूं असीं इवें रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, A डैश दे नाल एक कॉम्पलीमेंट है। सो कॉम्पलीमेंट ऑफ A दा कॉम्पलीमेंट की होएगा U माइनस A। सो A बेसिक ट्रिक है, U माइनस A मतलब कि जो U दे विच सारे U दे सारे एलीमेंट्स दे विचों असीं A दे विच जिन्ने एलीमेंट्स ने उन्हां नूं छड्ड के सारे A कॉम्पलीमेंट दे विच लिख देवांगे। लाइक हुण A दे विच किन्ने ने 1 2 3, असीं 1 2 3 नहीं लिखांगे। ठीक है, बाकी जिहड़े रह गए 4 5 6 7, सो ये साडा आंसर हो जाएगा। ठीक है, A कॉम्पलीमेंट का आंसर साडा A आ जाएगा। ठीक है, बेसिक तुसीं याद रख सकते हो U माइनस A। ठीक है, मतलब यूनीवर्सल सैट दे विचों A सैट, ये एग्जाम्पल ही तुहानूं याद रखनी पेगी। इहनूं असीं कहने कॉम्पलीमेंट ऑफ अ सैट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। और इहदे नाल रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ ने वो भी एक बारी देख लैंदे आ, बिकॉज इहदे विचों आई थिंक पिछली बारी क्वेश्चनस आए सीगे लाइक दिस A यूनियन A कॉम्पलीमेंट। हुण तुसीं याद रखो कि इत्थे A यूनियन A कॉम्पलीमेंट लिखिया होया है, वो इक्वल हुंदा है U दे, मतलब यूनीवर्सल सैट दे। ठीक है स्टूडेंट्स, ए वाला क्वेश्चन लास्ट वारी आया सीगा। ठीक है, A कॉम्पलीमेंट और इन दोनों का कॉम्पलीमेंट इज़ इक्वल टू A हुंदा है। सो सारियां ही प्रॉपर्टीज़ तुसीं याद जरूर करनियां ने। जिन्ने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक असीं डिस्कस कीते, जिन्ने भी हो सके अज की इस वीडियो दे विच असीं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसैप्ट सीगे जो तुहानूं हैल्प करनगे MCQs नूं सॉल्व करन दे विच। मैं सारे ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट चक्के ने, बिकॉज MCQs दे विच की हुंदा है कि जे तुहानूं कंसैप्ट की समझ है तो तुसीं MCQs ईजीली सॉल्व कर सकते हो, बट जे तुहानूं कंसैप्ट की समझ नहीं है तो तुसीं MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। सो असी तुसीं टेंशन ना लो, ये असी सिर्फ यही डिस्कस किया है। और MCQs करते करते बहुत सारे कंसैप्ट असी होर समझांगे। ठीक है, कई बारी कंसैप्ट जिहड़ा MCQ देख के तुहानूं याद आता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसैप्ट रह गए होंगे। सो अगले वीडियो दे विच असी MCQs ओनली डिस्कस करांगे फर्स्ट चैप्टर दे। जल्दी ही अगली वीडियो दे विच मिलते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ असी MCQs डिस्कस करांगे, बहुत सारे MCQs। सो जिन्नी प्रैक्टिस होएगी असी जरूर करांगे पेपर तो पहला।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।